आपको पता है हाफ ऑफ द इंडियन women go through domestic violence because they feel with love comes hurt. Can we say that from a failure, you are actually this entrepreneurship journey in spiritual leadership and parental coach started? हम गिरेंगे नहीं ना तो हमें उठने की वजह नहीं मिलेगी. Do you think women have superpowers? My biggest failure came when I became a mother. That social media picture of being perfect mother is making it very different. Parenting now is more harder than 20 years ago और पहले ज़्यादा hard था. अपनी पेरेंटिंग मिस्टेक्स करेंगे ना वो बच्चों के लिए एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स बन जाएंगी. आपको ये नहीं पता बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने अडेप्टेबल होते हैं. आपके बच्चे का हैप्पीनेस क्वेश्चन इज योर पेरेंटिंग पैरामीटर. Hello and welcome to Tales and Talks. Today we are diving into the beautiful chaos of parenting. The tantrums, the giggles and the moments that will melt your heart. Today we have our guest Mrs. Divya, who is a mother, an entrepreneur, a parenting and leadership coach who will be sharing insights on raising those tiny humans. So guys, let's get started. Oh, before that grab a coffee because this will take time. Hi Divya. Hi Amita Shri. Thank you so much for coming today. Thank you so much for having me here. So tell me, how are you? Very good. Very good to see you. Oh, same here, same here. So let's start with your journey first. From an individual to a mother to a wife and now to an entrepreneur. So the journey has been really different. I was lucky. I was brought up by very beautiful parents who have given me like everything I would have asked for. I was a very, very studious child and very ambitious woman. I always thought I'll do something really big. And I never thought I'll just be a mother, a wife. And my dreams were very, very high. So I did engineering, I did MBA. Then I was in a corporate profile doing really, really well. And then I got married. And I got married to a place which had no corporates. But of course, my husband was very, I will not say supportive. I think he was very kind to to ask me to join him and help him out. And he always used to tell me, you're so educated, you should not waste it. And that's how I thought, okay, that's fine. We should start with it. I come from an entrepreneurial family. My father is an entrepreneur. So that came naturally. And we started with this. And of course, there were ups and downs. And what I thought in my mind, I would be a corporate person, a high achiever. When you're an entrepreneur, the life is not really simple like a corporate ladder. आप परफॉर्म करे जाओ और आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और ऊपर चढ़ते जाते हो, ऐसा नहीं होता. Then the journey of entrepreneur started, wife started, which is very different. I come from a city which is very advanced, Gurgaon, to a place, Siliguri. 12 years back, Right. it was like almost a suburb being here. But yeah, it was quite a journey. I learned a lot, I'll say. And then came the most difficult part of my life. And that was being a mother. When people ask me that आपको तो बहुत जल्दी से आ गया होगा, आप तो पेरेंट कोच हो, I think because it was difficult for me, I became a parent coach. अगर पेन नहीं होता तो मैं सीखती ही नहीं. Because I was a topper, studious person, जो चाहा मिल गया, मेरे को जहाँ जॉब चाहिए कंपनी में मिल गई, तो मैंने कभी फेल होना ही नहीं सीखा. I think my first failure came when I got married, became an entrepreneur, saw so many difficulties. And my biggest failure came when I became a mother. So can we say that from a failure, you are actually this entrepreneurship journey in spiritual leadership and parental coach started? Absolutely. अगर हम गिरेंगे नहीं ना तो हमें उठने की वजह नहीं मिलेगी. So I think it's very important to fail in life. And that's the biggest mistakes parents do. कि बच्चे को फेल नहीं होने देते, फेलियर देखने नहीं देते, गिरने नहीं देते, लगने नहीं देते. And I think my parents were very, very protective. My father was very protective. He still is very protective. पर मैंने ना जब फेल होना सीखा, एक तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि मैं फेल होती ही नहीं थी. मैं अपने कॉलेज में टॉपर थी, मैं अपनी क्लास में टॉपर थी, मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देती थी मुझे सबसे पहले जॉब मिल जाती थी. लाइफ वॉज सो स्मूथ दैट आई डिड नॉट नो वट हार्डशिप्स वर. एंड इन टर्म्स ऑफ माई अचीवमेंट आई विल से, एंड मैं सिर्फ पढ़ने से और अपने से मतलब रखती थी. तो दुनिया में क्या चल रहा है, किसी के दोस्तों के साथ क्या चल रहा है या किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं था. सो माई इमोशनल कनेक्ट एंड सोशल कनेक्ट वॉज लेस एंड आई वॉज जस्ट इन टू माई वर्ल्ड. सो वैन यू बिकम अ मदर योर वर्ल्ड शिफ्ट्स. एंड मैंने सारी बुक्स पढ़ ली थी, सारे कोर्सेज कर लिए थे सोच के कि कैसे ना, बिकॉज यूर अ परफेक्शनिस्ट, सब कुछ आता है, तुम्हें टॉपर रहना है तो तुम्हें मदरहुड में भी टॉप रहना है.
तो सब कुछ पढ़ लिया, सोचा अब तो मैं फर्स्ट क्लास मदर बन जाऊंगी, लेकिन मदरहुड वैसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। You are saying like you were perfect, everything was a thing, and then failure taught you, and then you came to the journey. Do you think that somehow the other we women are always taught that you have to be perfect, you have to be perfect? But don't you think sometimes being imperfectly perfect can also gain you a lot of experiences in life? आई नाउ अंडरस्टैंड दिस। पहले ना परफेक्शन के लिए ना हमें ऐसा लगता था परफेक्शन कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर मुझे घर में एक पार्टी भी करनी है तो परफेक्ट, अगर मुझे आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू लुक परफेक्ट। यू नो, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि परफेक्ट नहीं हो तो गलत है। सो आई रिमेंबर वंस in my school, I'm a chemistry district topper. I got 99 on 100. And आपको पता है मेरी टीचर ने नहीं बोला well done. Okay. She told me 1 मार्क्स कहाँ गए दिव्या? And that is the time perfection hits you. And हम ना 1 मार्क्स को ढूंढने में लग जाते हैं और उस 99 की खुशी सेलिब्रेट नहीं करते। तो हमारे में 99 अच्छाइयाँ होती है और एक कमी होती है जिसके पीछे हम अपने आप को तंग करते हैं। After going through this journey, I understand it's beautiful to have imperfections and accept them. Accept them. Absolutely. And when we talk about parents also, we see there is a major change, old age parents versus Gen Z parents. Yeah. So what difference and what dynamics you have seen कि आपको लगता है कि ये अच्छा है और वो बुरा था, या फिर वो अच्छा है और ये बुरा है? Can you just tell us about Gen Z parents and the old school parents? पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते। ऐसा कोई पेरेंट ही नहीं है जिसका इंटेंशन होता है कि आज मैं अपने बच्चों को तंग करूंगा। मतलब ये कहना कि पुराने ज़माने के पेरेंट्स अच्छे नहीं थे या अभी के अच्छे हैं गलत होगा, क्योंकि पुराने ज़माने के पेरेंट्स को पता ही नहीं था। प्रॉब्लम क्या है कि हमें अभी अवेयरनेस आई है। अभी आप देखो तो ग्रैंड पेरेंट्स भी सीख रहे हैं। तो हमारे जो मेरी मदर इन लॉ है या मेरी मदर है वो भी सीख रही हैं कि अच्छा ये तरीका गलत था, अच्छा हमें पता नहीं था। तो पेरेंट्स गलत नहीं थे, बस उनको पता नहीं था। जैसे अगर आप पहले साड़ी पहनते थे और आपको पता नहीं था कि हम डेनिम्स भी पहन सकते हैं एंड दैट विल बी अलाउड, तो आप साड़ी पहनते रहते ना। बट नाउ व्हेन यू नो और आपको जब दिख गया है ये है, तो आप चेंज नहीं कर, यू कैन नॉट अनसी इट नाउ। Absolutely. सो हमारे ज़माने में पेरेंटिंग कैसी थी, आई विल नॉट से हमारा ज़माना, बट ओल्डर पेरेंट्स दे विल बी मोर लाइक fear based discipline करना। Right, absolutely. I remember we used to get grounded for any notorious stuffs. And now people talk about child's feelings. People talk about child's thoughts. तो ये जो scene है, like when did feelings become the key for disciplining child? मतलब ये belt कब replace हो गया कि let's talk? तो ये थोड़ा जानना था, मतलब when did this happen? इट वॉज लॉन्ग पेंडिंग। आप अगर इंडिया में देखोगे सबसे ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत हाई है। रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है रिलेशनशिप का। पीपल आर इन रिलेशनशिप विद 3 people 4 people। फ्रेंडशिप्स का मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं सिखाया। हमको हमेशा बोला फीलिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा करना अलाउड नहीं है। अगर बच्चा जेलस फील कर रहा है, ये कितनी बुरी बात है, तुम चिढ़ रहे हो उससे, उसके पास ज्यादा है तुम्हारे पास कम, भगवान ने जितना दिया ठीक है। सो आपको क्या बोला, ये नेगेटिव इमोशंस खराब है, इनको फेंक दो एंड यू ओनली थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट यू हैव। बट यू आर अ ह्यूमन, यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ फीलिंग्स। इट इज इम्पॉसिबल। हमारे पेरेंट्स को भी आती हैं जेलसी, एंगर, हेट्रेड, ऑल काइंड्स ऑफ फीलिंग्स। वो फीलिंग्स आए और उनको प्रोसेस कैसे करें, वो कैसे समझें? तो एडल्टहुड का सबसे मेन पार्ट, हम आजकल काम नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं, हम सब लोगों में पेशेंस ही नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं आता ना। तो इससे अच्छा हमें ये समझाया जाए, ओके आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जो आपने बोला, मैं समझती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं देख सकती हूँ, और बैठ के बात करते हैं गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये हम लोग जब, बट देयर आर चिल्ड्रेन एंड देयर आर फ्यू टीनेजर्स जैसे होते हैं, वो लोग रेबेलियन हो जाता है। जहाँ जैसे नर्चरिंग इज इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी ऑलवेज नो डिसिप्लिन मतलब पिटाई एंड नर्चरिंग मतलब आओ बेटा तुम सबसे बेस्ट हो। तो इसको बैलेंस कैसे करना चाहिए, कैसे करके बैलेंस, डिसिप्लिन भी हो, नर्चरिंग भी हो एंड चाइल्ड इज गुड? तो 4 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। इफ आई गो इन टू द बेसिस ऑफ पेरेंटिंग, वन इज अथॉरिटेरियन, जो हमारे टाइम के पेरेंट्स थे कि उन्होंने जो कहा वो लास्ट वर्ड है। तुमको डंडा मिलेगा, नहीं तो मेरे जैसा जो बोल रहा हूँ वो काम करो। उससे क्या होता है, डिसिप्लिन है लेकिन फियर बेस्ड है। फियर बेस्ड है मतलब अगर आपके मम्मी पापा घर से चले गए और उन्होंने जो मना किया था आप करोगे, तो आप डिसिप्लिन नहीं हुए, आप डर के चुप हो गए। डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि मेरे पीछे से भी मेरा बच्चा वो काम नहीं करे। वो डिसिप्लिन एक वैल्यू है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हमें एक तरीके से लाइफ जीनी है, लेकिन वो डिसिप्लिन है ही नहीं जिसको हम डिसिप्लिन बोलते आ रहे हैं। दूसरे पेरेंट्स होते हैं परमिसिव। तो आजकल के जेनजी पेरेंट्स को परमिसिव पेरेंटिंग विच इज लाइक लीनियंट पेरेंटिंग और जेंटल पेरेंटिंग का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है।
परमिसिव मतलब जिसको जो खाना है खाने दो, इसको देर से सोना है सोने दो, ज़्यादा टीवी देखना है ज़्यादा तंग नहीं करो, बच्चा है बड़ा हो के ठीक हो जाएगा। उनकी बाउंड्रीज ही नहीं होती। तो उनके लिए बच्चे क्या होते हैं, उनके बच्चे जनरली डिमांडिंग हो जाते हैं। उनके बच्चे जनरली दे विल आस्क फॉर थिंग्स दैट इवन इफ द पेरेंट्स डोंट हैव, दे विल बिकम रिबेलियन। एंड या तो और एक तीसरे तरीके के होते हैं नेग्लेक्टफुल। बच्चा जो मर्जी कर रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में भी थी, बच्चा अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं दे गोइंग टू बैड हैबिट्स, क्योंकि कोई चेक करने वाला ही नहीं है। जो सबसे अच्छी पेरेंटिंग होती है, जिसको हम जेंटल पेरेंटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग, राइट पेरेंटिंग, जितने भी टर्म्स आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, उसका होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कमांडिंग पावर है, यू आर द डिसीजन मेकर, लेकिन आप बच्चों को सुनते हो, आप उनका ओपिनियन लेते हो, आप बाउंड्रीज बनाते हो, डिसिप्लिन करते हो, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हो। आप डिसिप्लिन करने का हमारे लिए मतलब है जोर से बोलना, ये मत करो, लेकिन उसी चीज़ को ये सब भी तो बोल सकते हैं ना, ये अभी ठीक नहीं है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तुम इसको छोड़ दो। बिना एक्सप्रेशन चेंज किए, बिना बॉडी लैंग्वेज चेंज किए, बिना गुस्सा किए। राइट, दैट इज़ द राइट वे टू टॉक टू एनी ह्यूमन बीइंग। हम ना बच्चे पावरलेस होते हैं ना, तो पावर दिखाते हैं। आज आप क्या किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास जाके ऐसे बोल सकते हो, वो सेम गलती करेगा? नहीं बोल सकते। हमको ह्यूमंस को पता है कि पावरलेस को पावर दिखाओ एंड हाँ, पावरफुल के सामने चुप हो जाओ। सो व्हाट आई विल से इज, डिसिप्लिन का मतलब है बाउंड्रीज क्रिएट करना। बाउंड्री का मतलब क्या है, फैमिली रूल्स क्रिएट करना। तो सपोज आपको डिसिप्लिन करना है अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम के बारे में, तो सबसे पहला रूल क्या है, आप अपने बच्चों के साथ बैठोगे, अगर वो छोटे हैं तो आप बस रूल बना दो, रूल बना दो और स्टिक करो कि 1 घंटा ही देखना है, या आधा घंटा देखना है, या आधा आधा घंटा 2 बार ही देखना है, लेकिन उस रूल में आप भी पार्ट हो, इट्स अ फैमिली रूल। तो आप भी उतना ही देखोगे। आप मोबाइल चला रहे हो और बच्चों को बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुम नहीं देख सकते, तुम्हारा स्क्रीन टाइम ओवर। दे आर monkeys see monkeys do, they imitate, they don't, children don't do what you say, children do what you do। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आपको स्क्रीन टाइम के लिए कुछ रूल्स बनाने, एज अ फैमिली वी सिट टुगेदर, आस्क आपको क्या देखना पसंद है, आप कितने बजे देखना चाहते हो, ओके दिस इज़ योर स्क्रीन टाइम, इसके बियॉन्ड नहीं होगा। होता क्या है, मेरा बच्चा कभी बोलता है कि मम्मी आज आधा घंटा और आपको कुछ काम है या आप ही बिजी हो, अच्छा देख लो फिर कल वो बोलेगा आधा घंटा और, नहीं, आप कंसिस्टेंट नहीं हो और आपकी बाउंड्रीज फॉर्म नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे, तब आप एक पावर स्ट्रगल में पहुंचोगे। डिसिप्लिन का मतलब है बाउंड्रीज बनाना, कंसिस्टेंट रहना, स्टिक करना, और बाउंड्रीज में बच्चों की फीलिंग्स के लिए कंसिडरेशन रखना, चीखना चिल्लाना, दैट्स डिसिप्लिन। Right, thank you so much. But I have one more thing out here. That is, there are some kids which I have seen in maybe in my family also. वो लोग जेंटल पेरेंटिंग समझते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लाइक यहाँ दौड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट डू यू थिंक स्टिल समझाने के बाद दे विल लिसन? डू यू थिंक सो? बच्चे नहीं दौड़ेंगे तो कौन दौड़ेगा? एक्चुअली हमको अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि वो दौड़ना बंद करें, कि वो बच्चे होना बंद करें, वो एडल्ट्स बन जाएं, जहाँ बोलो बैठ जाए, जहाँ बोलो उठ जाए। ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे घर में भी दौड़ रहे हैं, वो घर है तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन वो जैसे ही रेस्टोरेंट में दौड़ना शुरू करते हैं आपको ट्रिगर होने लगता है, क्योंकि पब्लिक स्पेस है। या तो आप उनको घर से शुरू करो बैठाना और बोलो कि हमें बैठना है, और सिखाना शुरू करो, ताकि आपको पब्लिक जगह पे आके इतना प्रॉब्लम फील नहीं हो, या फिर उनको एक्सेप्ट करो और मे बी विद देम, और यू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन ऐसी होने वाली, मेरा बच्चा भागने वाला है, घर से प्रिपेयर्ड हो के आओ, मुझे कैसे हैंडल करना है, तो कि आपके ट्रिगर्स कम हो। ये जो ट्रिगर का बात आप कर रहे हो, तो एट द एंड हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ट्रिगर इसीलिए होता है क्योंकि वो पब्लिक स्पेस है, व्हाट सोसाइटी विल थिंक। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू इरेडिकेट, कि सोसाइटी के प्रेशर के लिए पेरेंटिंग ये करते हैं? ऐसा कुछ है जो ये लोग करते हैं एंड यू थिंक दैट इट शुड बी स्टॉप्ड राइट नाउ? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं? प्लीज़। एक बुक है गार्डनर एंड द कारपेंटर। उस बुक में बहुत अच्छे से लिखा है। तो हम पूरे सोसाइटी, आप जैसे कारपेंटर हो, और अगर मैं बोलूँ कि अमिताश्री मुझे चेयर चाहिए जिस पे मैं बैठी हूँ, आप इसका नाप लोगे, ये सेम लकड़ी लाओगे, पॉलिश लाओगे, कपड़ा लाओगे, आप इसकी 10 चेयर बना सकते हो, 20, 100, फैक्ट्री खोल सकते हो। हम ऐसे ही अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम एक चेयर देखते हैं जो सबसे बेस्ट बच्चा है, वो कितना अच्छे से बैठा है, मम्मी पापा की बात सुनता है, क्लास में फर्स्ट आता है, ये एक्टिविटी करता है, कहीं शैतानी नहीं करता, तो हमको वैसी चेयर्स चाहिए। लेकिन एक्चुअली हम तो कारपेंटर नहीं है ना, हम रोबोट्स नहीं बना रहे ना, हम तो गार्डनर है। गार्डनर क्या करता है आप बताओ?
एक पौधे को bloom कर, like the from a small seed how it blooms. So that what a gardener does, to give you fruits, to look your garden beautiful, be it a Absolutely. flower or maybe you want an output, be it a good fruit. So yeah, basically a blooming and brightening. So that's तो what सीड लेता है ना, yes, yes. सीड लेके मिट्टी में डाल मिट्टी में देता डाल है, देता है। उसको पता है सीड से मीठा संतरा निकलेगा या खट्टा संतरा? नहीं। क्या वो इस उम्मीद में सींचता है? नहीं। वो तो बस उसमें खाद डालता है, मिट्टी डालता है, पुट्स द राइट मैन्योर। वो उसको आंधी तूफान से बचा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा बारिश से बचा सकता है? नहीं। तो उतना ही बचाता है जितना बचाना है, और उतना ही कंट्रोल करता है जितना करना है। इट लेट्स द सीड फाइट ऑल्सो। जहाँ पे सनशेड बनाना है सनशेड भी बनाता है, उसका ध्यान रखता है, लेकिन वो उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देता है उसकी मर्जी पर। अब वो पौधा 3 फीट का हो, 5 फीट का हो, वो संतरा मीठा निकले, खट्टा निकले, वो उगे ही नहीं, वो सब वो भगवान पे छोड़ देता है। हम वो गार्डनर हैं जो बच्चे भगवान ने दिए हैं। वी डोंट ओन देम, they come through us, right? The problem is we think we own them, and then we make them chairs. The day we think कि एक इंडिविजुअल है, अपनी आइडेंटिटी के साथ आया, मेरा काम इनको अच्छे संस्कार देना है, वैल्यूज़ देना है, बाउंड्री सिखाना है, राइट डायरेक्शन देना है, उसके बाद छोड़ देना है, तब हम अपने बच्चों को ना वो सोसाइटी से नहीं नापेंगे। प्रॉब्लम तो सोसाइटी के चेयर्स ने की हुई है। Absolutely, absolutely. When we talk about parenting, we mean it's a collaborative job. Equal parenting जो हम लोग बोलते हैं. But people often miss out कि parenting मतलब मम्मी सिखाएगी, मम्मी करे, पापा आएंगे, चॉकलेट देंगे, चले जाएंगे. बट ये तो एक बहुत रॉन्ग नोशन है. तो आप इक्वल पेरेंटिंग को प्रोमोट करोगे तो कैसे करोगे? देखो, इक्वल पेरेंटिंग एटलीस्ट इंडिया में थोड़ी मुश्किल है। इक्वल पेरेंटिंग का मतलब हम सोच रहे हैं 50-50। 50-50 होता नहीं है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है कि हम अगर आप यहाँ के मेन को देखो, अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को, उन्होंने अपने पापा को घर के काम में या बच्चों के काम में 20-30% इन्वॉल्व होते देखा होगा। तो उनकी गलती नहीं, उनके दिमाग में नोशन बन गया है, ना ही उनके पापा की गलती, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है। एंड अगर आप देखोगे कि मैन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स होम, सो इफ अ वाइफ कम्स फ्रॉम ऑफिस, शी हैज़ टू गेट डाउन टू वर्क स्ट्रेट अवे। बच्चों ने क्या किया, होमवर्क हो गया, चाय बन गई, डिनर बन गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इज सॉर्टेड, द हस्बैंड कम्स बैक एंड देन द रिमोट इज ऑन, द टीवी इज ऑन, ही इज गॉसिपिंग, प्लेइंग विद चिल्ड्रन। It is because the society is programmed कि women is supposed to take care of the house. Primarily, women is supposed to be the caregiver. तो equal parenting का अगर हम shift लाना चाहते हैं तो उसको smaller size में शुरू करना है। गुड कॉप बैड कॉप करके नहीं करना, मम्मी ने डांटा पापा ने बचा लिया, पापा ने डांटा। सबसे पहले इक्वल पेरेंटिंग का रूल है कि जो मम्मी कहेगी वही पापा कहेंगे, जो पापा बोलेंगे वही मम्मी बोलेगी। अगर एक ने बोल दिया तो दूसरा काटेगा नहीं। ये फर्स्ट रूल है, ये दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इक्वल पेरेंटिंग। वहाँ से शुरू होती है, वो 50-50 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू नहीं होती है। उसके बाद इफ़ यू फील दैट यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए एंड यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू नो, ऐसा नहीं होगा। देन यू टेल योर पार्टनर क्लियरली कि मुझे यहाँ आपकी हेल्प चाहिए। मे बी आपको अपने बच्चे को किसी एक्टिविटी क्लास में छोड़ना है, या फिर यू आर रशिंग लेट, या फिर यू वांट कि आपको आधा घंटा अपने लिए टाइम चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली बताओ, क्योंकि इंडियन मैन आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वल पेरेंटिंग, बट आई रियली से दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। Absolutely. आजकल सो आई रन अ स्कूल एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी फादर्स कमिंग, एंड जो पेरेंट्स जैसे जिनके दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वहाँ पे ऐसी अभी भी फादर्स नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े बच्चे के साथ वो पुराने ज़माने के अभी जो 30s वाले या लेट 20s वाले पेरेंट्स हैं ना, द फादर्स आर मोर इन्वॉल्व्ड एंड दे स्पेंड गुड टाइम विद द चिल्ड्रन। सो व्हाट आई सी, देयर इज अ शिफ्ट, बट द शिफ्ट विल कम विद टाइम। और जितने जितने फादर्स इन्वॉल्व होते रहेंगे, जितना ये सोसाइटी में दिखता रहेगा कि अगर एक पापा भी गोदी में बच्चे को चुप करा सकता है, ममा कैन ईट इन द रेस्टोरेंट, वी विल सी मोर men blooming like that. Absolutely. I guess we are looking forward. We are already on a track. Though there is a station अभी दूर है, लेकिन आएगा स्टेशन वो। पक्का आएगा। And if you'll see next 10 years, India will see a drastic shift in father's contribution to the child. Right. And fathers are very, very important. Absolutely, absolutely. They are just not the bread earners, but they also imbibe those values, because I'm the only child here.
Maybe my father doesn't speak so much with me when I go to home and all, but I know that he is the man. He will be there with me through thick and thin. Yes. मतलब मेरा मम्मी अगर मेरे को वहाँ पे डांट देगी, मेरा पापा will be there and say no बेटा तू कर, मैं हूँ पीछे. Absolutely, I know. As a girl child, I can totally relate to this part. Boys child also. Yeah, absolutely, absolutely. They are there. Yeah, and कितनी बार I tell fathers, no, आपने पापा को ऐसे बच्चे को हवा में उड़ाते देखा है? आपने मम्मी को देखा है? पापाज रिस्क लेना सिखाते हैं. पापा से बोलते हैं तू कर, तू उड़, मैं हूँ. और वो बात मम्मी नहीं सिखा सकती. मम्मी हमेशा बोलती ध्यान से चलना, गिर जाओगे. तो अगर आपको उड़ना है ना, तो आपको अपने पापा का साथ चाहिए. तो पापा को ये समझ लेना चाहिए, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल, द मेजर पार्ट ऑफ रिस्क टेकिंग एंड फ्लाइंग एंड सीइंग दैट देयर इज समबडी इफ आई फॉल comes from dad. Absolutely. Beautifully said. I mean, I just got goosebumps here to study. Divya, tell me something. Prioritizing time with your child. आजकल के मॉडर्न के ज़माने में everybody is working, everybody is busy, right? हम लोग को चाइल्ड का प्रायोरिटी करना पड़ेगा, ब्रेड अर्नर बनना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. In this whole journey, there comes a time when the parents are worn out. They are tired. And if you are tired, if you are not in sanity, you will make some decisions which might actually go against your child. तो ये सब टाइम में खुद के लिए टाइम निकालना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे निकालें? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में पढ़ा भी है कि इस कप में अगर चाय है और आप कॉफ़ी मांगो तो मैं डालूंगी तो भी चाय ही आएगी. तो अगर मैं वॉर्न आउट हूँ, इरिटेटेड हूँ, तो मेरा बच्चा कितना भी प्यार दे दे, मैं इरिटेशन ही दूंगी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टाइम दो. एंड वो टाइम 10 मिनट भी हो सकता है. आपको सोचना होता कि हमें लगता है सेल्फ लव का मतलब है या मी टाइम का मतलब है आधे घंटे, 1 घंटे. वी हैव टू सिट विद अस, वी हैव टू डू फेस स्किन केयर, वी हैव टू रीड अ बुक, वी हैव टू लिसन टू रिलैक्सिंग म्यूजिक. इवन इफ यू सिट फॉर 10 minutes बिफोर गोइंग होम, what I do generally is before leaving my work and going home, I sit for 10 minutes, I close my eyes, I relax, I listen to some calming music. Maybe I have coffee and then go to my house, so that when I go back, I don't go to chaotic mind with chaos. I go with very fresh energy and I meet my children. लेकिन मैं 10 मिनट देर से पहुँचूँगी, चलेगा, लेकिन मैं 10 मिनट हैप्पीली पहुँचूँगी. एक चिड़चिड़ी मम्मा आपके पास 1 घंटा रहे या फिर एक हैप्पी मम्मी आपके पास 20 मिनट रहे, किस में ज़्यादा मज़ा है? Obviously, the second one impacts more. So it is very important you find your self-love. For some people, it can be reading a book. For some people, it can be just listening to music. For some people, it can be going for a walk. For some people, it can be going to a salon. Anything can be. For some people, can be sitting alone having coffee. कुछ भी अच्छा लगता है. And दूसरी चीज़ है, you and your partner should spend time. अगर वो भी नहीं हो रहा है ना, तो भी आप चिड़चिड़े होते हो. Because आपकी आइडेंटिटी, your life has so many things. You are a person, yourself, you are an entrepreneur, like you said, you are a mother. It's a part of your life, it is not your life. होता क्या है ना, हमने मदरहुड को अपनी लाइफ बना दिया है और हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे बिना कुछ नहीं है. लेकिन हम भूल गए हैं, हमारा तो एम ही हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है. एंड थिंक ऑफ इट, एंड दिस इज़ व्हाट माय हस्बैंड हैज़ टोल्ड मी. मैं पहले बहुत परेशान होती थी कि बच्चे को साथ कैसे होगा, आई एम वर्किंग एंड इट इज़ टू मच ऑफ वर्क. ही टोल्ड मी वन थिंग, तुम्हारी बेटियां हैं ना, तुम क्या दिखाना चाहती हो? एक मम्मी जिसके पास सब हेल्प्स हैं, शी कुक समटाइम, शी सर्व्स, शी एंटरटेन्स गेस्ट एंड शी जस्ट डज वॉट एवर शी इज़ डूइंग इन हर लाइफ, एंड दे थिंक दिस इज़ वॉट वुमेन इज़ सपोज टू डू. और यू गो टू वर्क, handle this, be with them, and you earn that respect that women can do everything. So I still don't think women can do everything. They have a lot on their plate. But I really think that has shifted from that thing कि मेरी बेटियाँ कुछ अच्छा देख रही है. They are seeing a very, they're seeing a mom which they will be proud of one day. And they'll, maybe one, I don't know this, but हाँ, जैसे my little one sometimes when somebody asks her, आप कहाँ पढ़ते हो? तो बोलती है अपनी मम्मी के स्कूल में पढ़ती हूँ. So that cute. Thing no gives me a smile that she has something proudly to say. Otherwise ये मेरे पापा का रेस्टोरेंट है, यही एक लाइन थी ना. So they will always think कि पापाज ही ये करते हैं and मम्मीज घर में रहती हैं. But we don't want this from our children and the world will not want that from women. Absolutely not. धीरे धीरे it will be a lot more women's world than if they have just seen a mother sitting at home
And I don't really mean homemakers are not good. Absolutely. Homemakers have amazing things to do. They have more work than me. They have to take care of lot of stress of the house. I go back from house and do what I like doing, right? But I still say, if you have an option to get up and go and do work for 2 hours also, please do it. Once you are happy, you'll give your happy self to children. Absolutely. You say that women cannot do everything, but somehow the other, I feel, I don't know, oh, correct me if I'm wrong, do you think women have superpowers? No. द प्रॉब्लम इज़ वही परफेक्शनिस्ट वाली बात कि हमें बोला है कि हम सब भी कर सकते हैं. तुम ये भी कर सकती हो, तुम काम भी कर सकती हो, तुम घर भी देख सकती हो, तुम बच्चे भी पाल सकती हो. और इस चक्कर में ना वॉर्न आउट ज़्यादा होता है. वॉर्न आउट का मेन रीज़न ही परफेक्शनिज्म है. जिस दिन लग जाएगा ना कि सब कुछ नहीं हो सकता यार, किसी दिन बच्चे छूटेंगे, किसी दिन काम छूटेगा, किसी दिन हस्बैंड के साथ टाइम नहीं होगा, कभी फ्रेंड्स बोलेंगे कि तुम आती नहीं हो. मैंने ना लाइफ में 3 प्रायोरिटी, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम सम प्लेस दैट प्रायोरिटाइज आप 3 ही चीज़ें कर सकते हो. 3 things only. 3 things. फिर उसके अलावा बाकी सब कुछ ना it's noise in your world. So I have prioritized fitness, finances and family. I think I said it the other way around. Finances last में आएंगे, but family, fitness and finances. Basically the 3 F's in your life. Yes. And उसके अलावा जो भी कुछ है, if I can give time to my friends, I'll absolutely give. लेकिन अगर नहीं होगा ना, तो I know my priorities are set. तो वॉर्न आउट तब भी कम होता है जब हमारी प्रायोरिटीज क्लियर है. कि मुझे पता है जब इन्हीं को टाइम देना है, अब किसी ने बुलाया भी, अगर मैं नहीं गई तो कोई बात नहीं. ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बच्चे अभी छोटे हैं, उनको टाइम चाहिए. माई फैमिली नीड्स मी. माई वर्क इज़ न्यू, इट नीड्स माई टाइम. एंड दैट्स हाउ इट इज़. या You have 2 beautiful kids and I'm sure कि आप बहुत फेस कर सकते हो कि टेंट्रम्स हो गया, मेल्ट्स डाउन हो गया. आप कैसे डील करते हो वो सब? तो पहले तो मुझे डील करना नहीं आता था. मैंने सीखा, मतलब सच में सीखा. मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई पेरेंटिंग में कि अगर बच्चा गिर जाता है तो कोई बोलता है चीनी खिला दो, कोई बोलता है चींटी मर गई, कोई कुछ बोलता है इसको मारो. ये मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि सही तरीका क्या है. कोई मारने को बोल रहा है, कोई चींटी मर गई बोल रहा है. मतलब देयर शुड बी वन राइट वे. सबके वेज तो सही नहीं हो सकते. देन आई ड्वेल्ड इनटू पेरेंटिंग का कोर्सेज. आई डिड 3 कोर्सेज एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अलग है. चाइल्ड साइकोलॉजी ना आपकी फियर पे नहीं बेस होती. तो जब टैंट्रम्स आते हैं ना, तो हम जनरली पेरेंट्स या तो चिल्लाते हैं, है ना, या फिर उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर कोई फियर ला देते हैं, पुलिस आ जाएगी, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ. ऐसा होता है ना. राइट, तो एब्सोल्युटली. हमको यही तरीके सिखाया गया है. एक्चुअली पेरेंटिंग ना जनरेशन से आती है. तो आपकी पेरेंटिंग आपके मम्मी पापा से आई है, मेरी पेरेंटिंग मेरे मम्मी पापा से आई है. कहीं ना कहीं जब आपके बच्चे होंगे ना, आपके मुंह से आपकी मम्मी निकलेगी, राइट. आपके मुंह से आपके पापा निकलेंगे. तो आपके मम्मी और पापा आप नहीं हो, और वो ज़माना नहीं है, वो बच्चे नहीं है. तो तब जब मैंने सीखा कि टैंट्रम्स मतलब हमारे बच्चे डिसरेगुलेटेड फील कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रहे. दैट्स वाई फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. जब वो अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? मतलब दे विल डू समथिंग एक्सट्रीम. दे विल डू. आप अपने इमोशन हैंडल नहीं कर पाती. यू सीन एडल्ट्स आल्सो थ्रोइंग थिंग्स, शाउटिंग. बच्चों, हमारे ना ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन इज फॉर लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन इज फॉर लीनियरिटी, कैलकुलेशंस, ये वो. राइट ब्रेन इज क्रिएटिविटी, राइट ब्रेन इज इमोशंस. सो बच्चों में 7 साल तक लेफ्ट ब्रेन तो डेवलप होता ही नहीं. वो अपने राइट ब्रेन से काम करते हैं. जिनके पास लॉजिक है ही नहीं, उनको बेटे ये ग्रीन बॉटल से ही पानी पियो, ब्लू में अलग नहीं आता. नहीं, मुझे ब्लू बॉटल चाहिए, एंड स्टार्ट क्राइंग. उसको लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा. उसके लिए ब्लू बॉटल उसका इमोशन है, एंड दे आर वर्किंग आउट ऑफ द राइट ब्रेन. और आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो लेफ्ट ब्रेन से. तो बस कितना भी समझाओ, मेरा बेटा समझता ही नहीं है, एक बॉटल के पीछे हल्ला किया हुआ है. उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका ब्रेन उनको बोल रहा है कि मेरी मम्मी समझ नहीं रही है. सो टैंट्रम्स को हैंडल करने का तरीका है ना, राइट ब्रेन से है. हम लॉजिक देते हैं तो टैंट्रम्स हैंडल नहीं होंगे. राइट ब्रेन को राइट ब्रेन से हैंडल करते हैं. तो आप उनकी फीलिंग्स को पहले समझो. सबसे पहले बोलो ओके मैं समझ रही हूँ, ब्लू बॉटल चाहिए थी ना, मम्मा समझ रही है. आपने जैसी ये बात बोली ना, बच्चा थोड़ा शांत होगा. जैसे ही आपको कभी किसी पे गुस्सा आता है, वो थोड़ा बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ गुस्सा आ रहा है, आप थोड़े से शांत होते हो, राइट. फिर बच्चों को फिर से इमोशनली कनेक्ट करो. अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम रो लो, तुम ठीक फील करोगे. या फिर तुम अगर अच्छा नहीं लग रहा, तुम जैसे भी फील कर रहे हो, मम्मा यहीं है, यू कैन कम एंड हग मी. दे विल शाउट, दे विल स्क्रीम, बट द मेन पॉइंट इज आपको अपना पेशेंस रखना है. और ये बोलते रहना है, उनमें लॉजिक नहीं है. मेरे को अपना काम लूज नहीं करना. मैं मंकी के साथ मंकी नहीं बन रही हूँ. आई एम नॉट एडिंग टू द क्योस, आई एम हेयर टू हैंडल द क्योस. द
टाइम यू कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ, आपका राइट ब्रेन वहाँ पे जाता रहेगा. आप इमोशनली आई अंडरस्टैंड यू, आई एम देयर, बेटा मैं समझ रही हूँ. जैसे ही वो शांत होगा उसका लेफ्ट ब्रेन थोड़ा बहुत काम करेगा, बिकॉज इट इज़ समवट डेवलप बट नॉट मैच्योर्ड. तब आप बोलो कि बच्चे पानी तो पी रहे थे, ये ब्लू बॉटल नहीं है, ऑरेंज है, अगली बार मम्मी ना आपको ब्लू बॉटल में डाल के देगी. और मे बी टॉक अबाउट दिस इन द नाइट व्हेन देयर माइंड इज़ मोर काम. उस टाइम पे ना आपको उस ड्रामा में और ड्रामा क्रिएट नहीं करना. पेरेंट्स उस ड्रामा में ड्रामा क्रिएट करते हैं और टैंट्रम्स बढ़ते हैं. राइट. आप देखोगे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट भी गुस्सा कर रहे हैं, ये राइट तरीका है, और गुस्सा करते हैं. या फिर पेरेंट्स टैंट्रम्स को मान लेते हैं, ब्लू बॉटल फटाफट ले आते हैं, वो भी होता है. तो क्या होता है, बच्चे को पता चला आज एक बार मम्मी को चीखने से मिला, अगली बार एक बार चीखने से, अब मैं 2 बार चीखूंगा. अब चीखता नहीं, अब मैं जमीन पे रोल करने लग जाता हूँ. राइट. तो उनको समझ में आ गया कि ये नहीं तो दूसरी ट्रिक से कर, तो मम्मी तो मान लेती है. तो वही डिसिप्लिन है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उस ड्रामा का पार्ट नहीं बनना है, आपको समझना है उनका राइट ब्रेन से राइट ब्रेन, और आपको कामनेस रख के उसको तब हैंडल करना है जब बच्चा शांत है. टैंट्रम्स पास होने दो, टैंट्रम्स आएंगे ही आएंगे, पास होने दो. आपको लगता है कि कुछ एक्टिव जो लिसनिंग होता है, जैसे अगर कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, अगर वो चाइल्ड एक्टिवली वो सुनते हैं, तो वो भी आपका ये जो मेल्टडाउन्स हो गया, टैंट्रम्स, थोड़ा हद तक कंट्रोल करता है? टैंट्रम्स तब भी आते हैं जब हमारे पेरेंट्स का हमसे कनेक्शन नहीं होता. तो अगर सपोज मैं काम से 4 दिन लेट आई और मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, आई विल सी अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स, क्योंकि उनको ना अटेंशन चाहिए. तो टैंट्रम्स आर अ पार्ट ऑफ अटेंशन ऑल्सो. हाउ हस्बैंड एंड वाइफ हैपेंस. अगर वाइफ, माई हस्बैंड माइट ऑल्सो थ्रो टैंट्रम इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम फॉर 4 days. Absolutely. सो पेरेंटिंग इज नो डिफरेंट देन एनी अदर रिलेशनशिप. वहाँ पे बस हम एडल्ट की जगह बच्चों से डील कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. राइट. जस्ट दैट हमने बहुत डिफरेंट समझ लिया और हमने इसको बहुत बड़ा जॉब ले लिया ये सोशल मीडिया के प्रेशर से. जस्ट दैट अगर आपके बच्चों के साथ आपका कनेक्शन है, कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि मुझे अपने बच्चों को आज मूवी लेके जाना है, कल डिनर पे ले. पेरेंट्स को कनेक्शन का मतलब ही मतलब गलत पता है. उनको सुनना है. तो मेरा तरीका मेरे बच्चों से कनेक्शन बनाने का ये है कि जैसे ही मैं घर जाती हूँ, आई विल ऑलवेज कैरी अ स्माइल. कभी कभी होगा कि नहीं होगा, आई एम अ ह्यूमन टू, बट मोस्टली आई विल कैरी अ स्माइल. एंड देन बिफोर स्लीपिंग मी एंड माई एल्डर डॉटर सिट एंड वी टॉक. हम बोलते हैं हमारी डे की स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को. ओह वाओ. And then I tell what happened in my day. She knows about my life. And then she tells me. And she tells me everything. मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. And then I get to know her. And then my tantrums reduce, क्योंकि जो उसको बोलना था उसने मुझे बोल दिया. Active listening हो गई. Same with my younger one. I go for a walk with her in the morning where she speaks and I would only listen. So जिस दिन connection build हो गया उस दिन tantrums कम आते हैं. जिस दिन connection नहीं build हुआ, so active listening is a very beautiful part of making connection. You pointed it out right. वो 20 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं. उसमें फ़ोन हटाओ, काम हटाओ, टेंशन हटाओ, बस बैठ जाओ बिना उनको इंटरप्ट किए. वो कुछ भी बोल रहे गलत भी सुनो. That's so beautifully explained. Divya, do you think parenting now is more harder than 20 years ago, और पहले ज़्यादा हार्ड था? कौन सा? पेरेंटिंग हार्ड ही होता है. मतलब कोई भी आपको बोल रहा है ना पेरेंट बनना आसान है, मत आना उसकी बात में. पेरेंटिंग हार्ड होता है क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग को बड़ा कर रहे हो, और अगर आप उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो मेहनत तो लगेगी ना. 20 ईयर्स और अब में हार्ड तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर. मेरी मम्मी के क्या चैलेंजेस थे, या मेरी मदर इन लॉ के, या आप सबकी मम्मा के क्या चैलेंजेस थे. मुझे बस इतना पता है आजकल की वीमेन पे प्रेशर्स आते हैं. प्रेशर टू लुक सर्टन वे, टू हैव अ सोशल लाइफ, टू अर्न मनी, टू हैंडल चिल्ड्रन इन ऑल द एक्टिविटी क्लासेस. आपको स्कूल में भी अच्छे पढ़ाना है अपने बच्चों को, और उसके लिए चीज़ें भी बहुत सारी करनी है. सो यू आर जगलिंग अ लॉट मोर देन वॉट यू यूज टू जगल. एंड देर वॉज मोर बैलेंस लाइफ 20 years बैक. एक टाइम पे उठना, एक ठहराव था. अभी लाइफ में टर्बुलेंस है बहुत, एंड उस टर्बुलेंस में हम अपनी नाव कहीं पार लगा रहे हैं. सो आई थिंक दैट टर्बुलेंस इज मेकिंग इट मोर डिफरेंट, एंड दैट सोशल मीडिया पिक्चर ऑफ बीइंग परफेक्ट मदर is making it very different. I just want to add another point here. Back in 20 years, we had this joint family system. Now the shift has come to as a nuclear family. So do you think due to this reason also women are having a lot of pressure onto themselves? Yes. Both have their own pros and cons, but I'll still say joint family में बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अच्छा बुरा सब. और न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सिखाने का. बट ऑन द अदर साइड आई मीट मम्स विल से हम अकेले ही रहना चाहते हैं क्योंकि गलत बातें भी सीख रहे हैं, हम अपने तरीके से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं. सो डिपेंड्स Upon the situation.
about how the parent wants the child to be. But if you ask me, I still feel joint family is a very good way of bringing up children. We always talk about parenting. What do you think about grandparenting? Like, do you think that also add a lot of values to a child's development area? My daughter, she can't live without her grandmother, Dadi. And she is mad about her. And I think looking at their bond, I feel so jealous because I never had my Dadi. Grandparents are very, very important. They are like that roof on your head. अगर पेरेंट्स से कुछ गलती भी हो जाती है तो वो संभाल लेते हैं. And at times, I think it's an important figure in your house to make you feel so comfortable. मम्मी तो डांटेगी भी, मम्मी तो पढ़ाएगी भी, मम्मी तो डांटेगी इन द सेंस दिल बी अ प्रेशर ऑन मॉम कि आपके बच्चे को पढ़ना भी है, अब खेलने भी जाना है. अब दादी क्या बोलती है, अच्छा आप बैठ, क्या हुआ बता, ठीक नहीं लग रहा, क्यों? बिकॉज शी डजंट हैव द, शी हैज़ हैंडल्ड दैट प्रेशर, नाउ शी इज़ एंजॉइंग एंड नाउ शी इज़ गिविंग दैट कम्फर्ट टू द चाइल्ड. I think grandparents are very, very beautiful. It's a beautiful blessing, I guess. Yes. I remember, I just want to share, when, as we know that old parents का सबसे discipline का most था कि मारना या पीटना. So when I used to be a kid, notorious stuffs happen, mom डांट रही है वगैरह, and I guess nani is the first to come and save you that मत करो. फिर मम्मी का उनके साथ झगड़ा होता था, आप तो मेरे को मारे थे, मैं भी मारूंगा. तो I guess वो जो आप बोले कि पेरेंटिंग जनरेशन से आते हैं, तो मे बी बिकॉज मेरी मम्मी को डांट मिला था बोल के शी यूज टू स्कोल मी, बट समहाउ द अदर वी हैव टू चेंज दिस पैराडाइम कि जैसे सिचुएशन होते हैं वैसे पेरेंटिंग करना चाहिए. Exactly. और जब तक हम इस जनरेशनल चेन को तोड़ेंगे नहीं ना, हमारे अंदर ना एक बहुत ही वॉइड रह जाता है. हमको जितना मर्जी पता नहीं हो, हमारे पेरेंट्स जितने भी अच्छे हों, लेकिन जो पेरेंटिंग मिस्टेक्स मैं भी करूँगी, आप भी करोगे, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जितनी कम कर पाए उतना अच्छा. हम जितनी पेरेंटिंग मिस्टेक्स करेंगे ना, वो बच्चों के लिए एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स बन जाएंगी. दैट इज़ वाई इमोशनल डिसरेगुलेशन हैपन्स. एंड कुछ चीज़ें ना, आपके रिएक्शन आपके सारे रिएक्शन चाइल्डहुड से आते हैं. फ्रॉम द टाइम यू आर 0 to 5 years ऑफ एज, योर आइडेंटिटी इज़ फॉर्म्ड, योर रिएक्शंस आर फॉर्म्ड. आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स इतने बन रहे होते हैं कि जो आप माहौल देखते हो, जैसे आप रहते हो, जो अपनी मम्मी का रिएक्शन देखते हो, जैसे आपके घर का माहौल देखते हो, आप वैसे बन जाते हो. तो आपको एडल्टहुड अगर अच्छा चाहिए तो आपको स्टेबल हाउस होल्ड देखना है, और एक स्टेबल फैमिली देखनी, और एक स्टेबल रिलेशनशिप देखने. टर्बुलेंट रिलेशनशिप लीड्स टू अ वेरी टर्बुलेंट एडल्टहुड. तो आई थिंक आपके चाइल्डहुड का मेजर पार्ट ना कम्स फ्रॉम हाउ योर पेरेंट्स ट्रीटेड यू एंड हाउ दे वर विद ईच अदर ड्यूरिंग योर फर्स्ट 5 to 6 years ऑफ योर लाइफ. Right. Absolutely. I guess we have seen some child also that जो थोड़ा बहुत aggressive होते हैं वो होते हैं. When we hear this story, they बड़ा हो के जब दैट आई एम नॉट एग्रेसिव, उन लोगों को लगता है कि वो एग्रेसिव नहीं है, बिकॉज उन लोगों को शायद एग्रेसिवनेस इज अ नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो छोटे से शायद उन लोग के पास वो हुआ था बोल के. दिव्या, व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्ट्रेस होता है, देयर इज अनदर पार्ट इज चूजिंग नैनीज, विच हैज़ बिकम इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. बट आपको क्या लगता है कि जब पेरेंट्स कुछ नैनीज चूज कर रहे हैं, उनको क्या देखना चाहिए सो दैट उन लोग का फैमिली डायनामिक्स ना बिगड़े? तो पहले मुझे लगता था नैनी रखने से मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करेगा. तो ये तो मिथ है, क्योंकि मैंने रख करके देख लिया. जब फर्स्ट चाइल्ड के पास नैनी नहीं थी तो मुझे लगता था नहीं, मेरा बच्चा है, मेरे पास रहेगा. एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन मेकिंग हर इंडिपेंडेंट. वो अभी तक मेरे पे डिपेंडेंट है. So that does not mean you should always have a nanny. It's a personal choice. But having a nanny doesn't mean you become a bad mom. Doesn't mean your child will not love you. Your child is your child. Remember. In my second child, I have a nanny. But I was very sure. मेरी पहली child के बारे में गलती क्या थी? मैं nanny को अपने expectations नहीं बताती थी. That what I want from you and what is it that our values are. And you have to stick to it. So अभी के time पे मैंने अपनी nannies को अपनी सारी values बता के रखी है. मेरी expectations है. और दूसरी चीज़ ना, मैंने उस पर ट्रस्ट भी किया. होता क्या है ना, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं और हम उनसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. सो मदरहुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही किसी को अपना बच्चा देना और ट्रस्ट करना है. तो आप किसी पे ट्रस्ट करो, उसको अपनी वैल्यूज़ बताओ, एक्सपेक्टेशंस बताओ, एंड देन गिव देम द जॉब. डोंट डू इट ऑन द जॉब, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज होते हैं. वो भी तो अपने पेरेंटिंग और अपने चाइल्डहुड और अपने तरीक़ों से आते हैं ना, उनको भी तो बदलने में टाइम लगेगा. तो हैंड होल्डिंग चाहिए होती है. आप उनको परफेक्ट समझ के लेते हो, पता नहीं कैसी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. आप सिखाओ ना, आप उसके लिए 2 महीने 3 महीने पेशेंस रखो, उसको आएगा.
का लेकिन- मतलब ये जो सोचना है कि मैं अगर बाहर चली जाऊंगी मेरे साथ ये इमोशनल कनेक्ट नहीं रहेगा मेरा बच्चा का, दिस इज़ अ मिथ. एंड अगर आप आपके एक्सपेक्टेशंस नैनीज को बताओगे तो वो फैमिली डायनामिक भी सही रहेगा. एब्सोल्युटली. और आपका बच्चा नानी से अटैच भी होगा और इसके लिए अच्छी बात है ना. Right. इसका मतलब नानी अपना काम ठीक कर रही है. तो कुछ मॉम्स ये भी परेशान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा तो नैनी को प्यार करता है. अरे नैनी है, अच्छी है तो प्यार करेगा, बच्चा है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम प्यार करेगा. Very sad. Divya, what do you think a common mistake a Gen Z parents does these days? ओवर पेरेंटिंग. पहले प्रॉब्लम थी अंडर पेरेंटिंग की, अभी प्रॉब्लम है ओवर पेरेंटिंग की. कि उनको ना सब कुछ करना अपने बच्चों के लिए. सारी एक्टिविटी क्लासेस में डालना है. किसी ने डाला चेस में, मैं भी चेस में डालूंगा. किसी ने डाला कराटे में. अजीब अजीब क्लासेस आ रही है. हम सब में एक रेस लगी हुई है. मेरे बच्चे को सब आना चाहिए. बैलरीनास बन रहे हैं, क्या क्या बन. It's good you expose your children to a wide range of things, but your child can't be everything. वो योगा भी करे, बैलरीना भी करे, चेस भी खेले, ब्रेन जिम भी करे. इम्पॉसिबल्स. तो आप एक तो ओवर एक्टिविटीज़ में डाल रहे हो, ओवर पेरेंट कर रहे हो, बच्चे की सारी डिमांड मांग रहे हो. आजकल बच्चों के पास आईफोन है, आईपैड है, सब प्ले स्टेशन, एवरीथिंग. हो क्या रहा है ना, जब हम वर्किंग पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई भी पेरेंट्स जो बिजी हैं या होम मेकर्स भी, मदर्स जो टाइम नहीं दे पा रही है अपने काम की वजह से, हम गिफ्ट से कॉम्पनसेट करने लग गए. और गिफ्ट कैन नेवर ट्रेड टाइम, गिफ्ट कैन नेवर ट्रेड यू. सो दैट ट्रेंड ऑफ ओवर पेरेंटिंग, ओवर पैम्परिंग, गिविंग देम लॉट ऑफ गिफ्ट्स, इट इज जस्ट स्पॉइलिंग चिल्ड्रन. वो प्यार नहीं है, वो प्यार. That is just trading. दैट्स जस्ट ट्रेडिंग. Trading. एंड उसके बाद ना आप अपने बच्चों को मटेरियलिस्टिक बना रहे हो. फिर ना उनको वो गिफ्ट्स की भी वैल्यू खत्म. अगली बार आप लेके आओगे ना, ठीक है, And then you will complain again. यस, कि इनको कोई परवाह ही नहीं, मैं इतना कुछ लेके आता हूँ, देखो हमारे बारे में मम्मी एक पेंसिल भी लेके आती है. Right. आप ही ने तो वो क्रिएट किया. यू वर द वन हु मेड श्योर कि आपका बच्चा हर एक गिफ्ट को. आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना अपने बच्चों को बंद करना. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है, आज बोल रही है बैग चाहिए, चल बेटा. आज बोल रही है कि पापा मुझे टॉय चाहिए, चल बेटा. आज आईफोन चाहिए, चल बेटा. बड़ी होगी अब तो आईफोन ले देंगे. आपको अपने बच्चे को डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाना है. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है, आपको बैग चाहिए, लाइक माई डॉटर इज आस्किंग फॉर वन बैग एंड आई टोल्ड हर क्रिसमस में मिलेगा बेटा. सो शी इज़ वेटिंग फॉर क्रिसमस फॉर 2 months. दैट वेट इज़ सो प्रेशियस. वो गिफ्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, आपके बच्चे को पेशेंस भी आएगा. और जब लाइफ फेलियर्स देगी ना, तो उसको सीखना भी आएगा कि हर चीज़ इंस्टेंटली नहीं मिलती. आप तो दे दोगे, लाइफ तो नहीं देगी. यू आर प्रिपेयरिंग योर चिल्ड्रन फॉर लाइफ. तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ओवर पेरेंटिंग और ओवर पैम्परिंग उनको कितना डिफिकल्ट कर रहा है. Right. And these days I have also heard parents, not these days actually, maybe our parents, that हम लोग नहीं कर पाए, तुमको मैं कराऊंगा या तुमको मैं कराऊंगी. तो आपको लगता है कि जो void उनके लाइफ में रह गया है, they want to fulfill it with their child? हमेशा से जो मुझे नहीं मिला मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाई मेरे बच्चों को करना चाहिए. आई विल अगेन से दे हैव कम थ्रू अस, वी डोंट ओन देम. तो आप उनको क्या बनाना चाहते हो, वो 3 Idiots में लड़का बने तो फुटबॉलर होगा और लड़की बने. अगर हम ऐसे, मेरे साथ हुआ, जबकि मेरे पेरेंट्स बहुत फॉरवर्ड थे, लेकिन आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड. आई थिंक आफ्टर मी दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, कि गिनी पिग बन गई मैं. आई वॉन्टेड टू डू अकाउंट्स एंड आई रियली लाइक इकोनॉमिक्स. तो लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो अच्छे मार्क्स का मतलब साइंस लेना पड़ेगा. मेरे स्कूल ने भी नहीं माना, मेरे पापा ने भी नहीं माना, इंजीनियर बन जाओ. मुझे शू डिज़ाइनर बनना था. अब मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स हैं, मुझे साइंटिस्ट. ये सब जॉब्स, दीज आर नॉट जॉब्स फॉर वुमेन. अभी इंजीनियरिंग कौन सी जॉब हुई है? मैं सिलीगुड़ी में आई तो इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो वो भी तो यूनिवर्सल नहीं हुई. अगर मैं शू डिज़ाइनर होती तो शायद आज यहाँ पे भी कुछ कर लेती. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. दे स्टिल इंटेंडेड द बेस्ट फॉर मी. दे थॉट आई एम केपेबल एंड दे मेड श्योर दैट माई केपेबिलिटीज़ आर टेकन केयर ऑफ. लेकिन उस चक्कर में ना, कि हमको अपने बच्चे को ये बनाना है या करना है, कहीं ना कहीं बच्चा गुम जाता है. एंड मेरे को अपना काम समझने के लिए, करने के लिए बहुत टाइम लग गया कि मैं चाहती क्यों, मैं इंजीनियर हूँ कि मैं MBA हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. लाइक इट गॉट मी कन्फ्यूज्ड. सो अपनी चीज़ें आप बच्चों पे नहीं थोप सकते. अगर वो चाहे तो ठीक है, उनको ज़रूर बताइए कि ये भी एक ऑप्शन है. डू यू वांट टू एक्सप्लोर? ऑफ कोर्स गिव योर ओपिनियन, टॉक टू देम. अगर वो ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले तो कोई बात नहीं. You are a chemistry topper. So do you think there is a chemistry bit? आप spiritual leadership भी करते हो, तो आपको लगता है कि एक spiritual leadership और एक parenting का कुछ chemistry होता है?
होता है। एक लीडर पेरेंट जैसा ही होता है, एक अच्छा लीडर पेरेंट जैसा ही होता है। सो मेरा एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है साइमन सिनेक। सो ही ऑलवेज कनेक्ट्स पेरेंटिंग टू लीडरशिप। ही सेड लीडरशिप इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू पेरेंटिंग। आपकी टीम आपके बच्चों जैसी है, आप एक पेरेंट जैसे उनको नर्चर कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। जहाँ गलती करते हैं समझाते हो, जहाँ अच्छा करते हो उनको मोटिवेट करते हो। हम गलत तब हो जाते हैं जब हम लीडर बन के अपनी टीम को ना एक कंपटीशन में रख देते हैं या फिर उनको एम्प्लॉयज़ जैसे ट्रीट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, आई अंडरस्टैंड कि फैमिली कल्चर टीम को ग्रो नहीं करता, बट एटलीस्ट ट्रीटिंग देम राइट एक्चुअली हेल्प्स। सो आई विल से देयर इज़ अ कंपनी विच आई लर्न फ्रॉम साइमन सिनेक ओनली, जो अपनी टीम को हेड काउंट नहीं हार्ट काउंट बोलती है। तो जब आप किसी को हार्ट काउंट बोलोगे तो आप उसका ध्यान रखोगे ना। अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो आप उसको घर से तो नहीं निकाल देते, लेकिन आपका एक एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करता, आप उसको इमीडिएटली काम, ज़रूरी है कभी कभी काम से निकालना भी ज़रूरी है, लेकिन पहले नर्चर करना ज़रूरी है, उसको वैल्यू सिखाना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कि एज अ लीडर या एज अ बच्चा तुम्हें करना क्या क्या है, उसके लिए भी बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी है। वही तो बिजनेस का सिस्टम है जो पेरेंटिंग का सिस्टम है। एंड देन इफ दे डोंट वर्क, देन यू हैव डिसिप्लिन, देन यू हैव अदर थिंग्स। Other things to do. Divya, when we are talking about nannies here, we see celebrities में ये nanny culture जो सीन है कि proper corporate dress, professionalism. आपका क्या take है इसमें, that how are we getting these nannies? सो अच्छी बात है ना दैट वी आर गेटिंग प्रोफेशनलिज्म इनटू दिस वर्क विच रियली रिक्वायर्स अटेंशन। आप अपने बच्चे किसी को दे रहे हो, व्हाट इफ द प्रोफेशनल्स दे कम विद सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, देन यू आर मोर सिक्योर टू गिव योर चाइल्ड एंड थिंक ऑफ इट हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट कैन गिव टू पीपल। सो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से ले तो वाई नॉट, देयर शुड बी मोर सच पीपल हु कैन गिव यू ट्रेन पीपल सो दैट आप अपने बच्चे को सिक्योरली छोड़ के जाओ और काम भी कर सको। लाइक अ मदर इज मोर फ्री दैट वेज। Right. And there is another reel currently going on with the nannies hired by the Ambanis, the foreigners. So, what's your take there? Like, why do you think why? Because they will not have like they have enough options of taking it from India, but why foreigner nanny is hired for their child? See, I've not seen that nanny, but I'll still think maybe इंडिया में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न पेरेंटिंग ही आ रही है, बिकॉज दैट वाज सपोज टू बी द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग जो हम धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। नॉट ऑल ऑफ दिस बट सम ऑफ इट कीपिंग आवर कल्चर अलाइव। सो मे बी दे थॉट कि उनकी नॉलेज इन टर्म्स ऑफ दैट राइट पेरेंटिंग एंड डिसिप्लिनिंग एंड मेकिंग द चाइल्ड मोर इंडिपेंडेंट इज राइट। So maybe that was the reason. I don't know. It's my personal notion that I think maybe because of the language, because we see that because the child is with nannies for most of the time, they imbibe to take their dialect or the way they speak. So do you think that that also might be one of the reason that if you have a foreign parenting है तो फिर वो लोग थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज बात कर सकते हैं फिर हो सकता है बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द नैनीज विच आर ट्रेन्ड ऑल्सो दे आर गेटिंग अ high salary, so they speak English, which in our country is supposed to be very very important. So if that might be the reason, I don't know. What is that one parenting myth that you want to yell and tell that stop it right now, ऐसा कुछ नहीं है? क्या बोलना, कौन सा myth है? तो सबसे बड़ा मिथ है कि पनिशमेंट इज नॉट इक्वल टू डिसिप्लिन। हमें भूलना होगा पनिशमेंट से बच्चे डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन का मीनिंग ही रॉन्ग है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके बच्चे रोज़ सही आदतें फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग हैबिट्स, जिसके बारे में आप बुक्स पढ़ते हो ना आजकल, एटॉमिक हैबिट्स, 5 AM क्लब, बड़े बड़े स्पीकर्स बोल रहे हैं, वो तुम पेरेंट्स सिखा सकते हैं ना। एक्चुअली हमें सिखाया नहीं किया, इसलिए आज वो बुक्स पढ़नी पड़ी। दैट्स व्हाट आई सेड, वी आर बिकमिंग ब्रोकन एडल्ट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, मुझे ना एक बहुत एजुकेटेड किसी ने बोला था कि मैं तो बहुत अच्छा खासा करूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे पापा ने तो मुझे बहुत मारा, क्या ख़राब हो गया। But I have something to tell which was very, very, very deeply connected to my heart. आपको पता है half of the Indian women go through domestic violence because they feel with love comes hurt and they keep quiet. हमने internalize कर लिया कि प्यार के साथ साथ मार भी मिलती है, जो प्यार करता है वो मारता भी है। Abuse has become the biggest problem in India. Men also take it, women also take it. And then they get into this toxicity where love and hurt goes hand in hand. क्या आप अपने बच्चों के साथ ये चाहते हो? Stop telling them कि जो प्यार करते हैं ना, जो आपके सबसे सेफ जोन है, जहाँ पे जाके अपना दुख दर्द सुना सकते हो, वही लोग आपको जब मन चाहे लगा भी सकते हैं. That is not taking care of children. That is
मेकिंग पावरलेस फील मोर पावरलेस. आप किसी पावरफुल इंसान को नहीं मारोगे, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ. मारना, पीटना, पनिशमेंट देना, डार्क रूम में बंद कर देना, फियर डालना, पुलिस आ जाएगी, वो पेरेंटिंग और डिसिप्लिन नहीं है. वो बच्चे को डराना है. आज पुलिस बोल रहे हो, 10 साल में नहीं बोल पाओगे तो कौन सी पुलिस आएगी. आपको राइट तरीके से डिसिप्लिन करना है जो 10 साल बाद भी काम आए. आपके बच्चे आपके बिना भी वैसे ही रहें, ऑनेस्ट रहें, अच्छे रहें. वो कैसे होगा. और अगर कुछ गलती भी करे तो आपको अच्छे से बता पाए. आप मारोगे तो बताएंगे क्या. इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम्स में भी आते हैं. सो आई आस्क दैट पर्सन, सपोज आप कॉलेज में हो, आपने बहुत ड्रिंक की हुई है और आपका एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया. यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, यू आर ब्लीडिंग, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग. गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा नहीं हो. उस टाइम पे क्या अपने पापा को कॉल करोगे जब आप ही की गलती थी, आप ही ने पी हुई थी, आप ही से कार क्रैश हुई और आपकी वजह से अब सब फंस गए, कि मरना पसंद करोगे. नाउ यू नो द आंसर. सो फाइंड योर बैलेंस विद योर चिल्ड्रन. कि मुश्किल में भी फंसे तो भी आपके पास भाग के आए. वो तभी होगा जब हम ये सब चीज़ें बंद करेंगे. हम सब लोग शायद डर के मारे भाग के ही नहीं जा पाते थे. जितनी बड़ी मुश्किल हो जाए उससे सुसाइडल रेट, डिप्रेशन रेट इज़ हाई. टॉपर्स सुसाइड कर रहे हैं. टॉपर्स, इमेजिन. हमको लगता है टॉपर होना मतलब कितने अच्छे पेरेंट्स होंगे, इनका बच्चा टॉपर है. आपके बच्चे का हैप्पीनेस क्वेश्चन इज़ योर पेरेंटिंग पैरामीटर. आपके बच्चे का क्लास में टॉपर होना आपकी पेरेंटिंग को कहीं कुछ नहीं दर्शाता. कर सकता है. Right, absolutely. Coming to this, we have a school open that is Curious Giggler, where you are the founder. What is Curious Giggler? सो क्यूरियस गिगलर्स इज फ्रीडम. बच्चों को बच्चा रहने की फ्रीडम इज क्यूरियस गिगलर्स. हम बहुत सालों से ना बच्चों को वो पढ़ाते आ रहे हैं जो लाइफ में काम ही नहीं आता. ABC 1 2 3 बाबा ब्लैक शीप सब अच्छा है, ज़रूरी है, सब चाहिए, लेकिन काम क्या आता है. काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, काम आते हैं वैल्यूज़, काम आते हैं लाइफ स्किल्स, काम आते हैं रिस्पॉन्सिबल बनना, डिसीजन बनाना. वो कौन सिखाएगा. फाइनेंसेस हैंडल करना, स्ट्रेस हैंडल करना, फेलियर्स हैंडल करना, वो कौन सिखाएगा. हम क्यूरियस गिगलर्स में वो सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ. क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एकेडमिक्स के बिना तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा. और शायद कहीं इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा पढ़ना लिखना तो पड़ेगा. पर क्यूरियस गिगलर का करिकुलम ऐसा डिज़ाइंड है कि बच्चे हंसते खेलते पढ़ ले. इट्स अ प्ले बेस्ड लर्निंग स्कूल. वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल वैल्यू बुक जिसमें 12 वैल्यूज़ लिखी हैं. रिस्पेक्टफुल, हम्बल, काइंडनेस. सो वी वांट आवर चिल्ड्रन टू से व्हाट डू यू वांट टू बी एज एडल्ट्स. अब व्हेन यू ग्रो अप व्हाट डू यू वांट टू बी. आई वांट देम टू से आई वांट टू बी काइंड, आई वांट टू बी हम्बल, आई वांट टू बी रिस्पेक्टफुल, आई वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल. देन सेइंग आई वांट टू बी एन इंजीनियर, डॉक्टर. सो क्यूरियस गिगलर वो स्कूल है जो बच्चों को ना यहाँ से इंसान बनाता है, यहाँ से तो बन ही जाते हैं. जब आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में है तभी आप यहाँ से भी काम करते हो. सो वी वर्क हियर एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक्स भी उनको सिखाए जाते हैं. दैट इज़ अ मेजर पार्ट. एंड एकेडमिक्स भी ऐसे सिखाए जाते हैं जिससे वैल्यू मिले. तो हमारे इंडियन सिस्टम में फोनिक्स जो है ना, फोनिक्स होता है ABC का साउंड. ए को ए बोलते हैं, बी को बब्बा बोलते हैं. तो वो सिखाए जाते हैं 3-4 साल में. लेकिन हम 18 महीने के बच्चों को सिखा देते हैं. तो बच्चे ए अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है, A to Z सुनाना. मतलब अगर आप किसी पेरेंट से पूछो ना आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या हुआ, A to Z आ गया. अच्छी बात है. A to Z का मतलब क्या है, उसको रीडिंग एंड राइटिंग है. वो किससे आएगा, उसकी साउंड से. तो सिखाना क्या चाहिए, उल्टा सिखा. हम नंबर्स जब सिखाते हैं तो हम 1 2 3 4 5 नहीं सिखाते. दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 and this is 3. 1 2 3 is not 3, because you have to individually tell them the values to use them in money, use them in counting, use them in daily life. तो हमारे स्कूल का एम है एकेडमिक्स भी किसी रीज़न से साइंटिफिकली सिखाई जाए, और जो हम उनको सिखा रहे हैं वैल्यूज़, इमोशनल. सो वी हैव स्पेशल फ्लैश कार्ड्स फॉर इमोशंस. तो फर्स्ट 1 year they learn only about the names of emotions. So there is a big book which I've read. It's the power of, मैं नाम भूल रही हूँ उसका. उस बुक में बोला है कि आपको इमोशंस पहले टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनको नेम करना पड़ता है. द होल ब्रेन चाइल्ड, सॉरी, उस बुक का नाम है. तो सबसे पहले हम उनको नेम करना सिखाते हैं. तो दे से शाय, एक्साइटेड, सैड. जब इमोशंस समझोगे तभी तो इमोशंस को कंट्रोल करोगे. और हाफ ऑफ द एडल्ट्स तो ना इमोशन समझते हैं, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, और ABCD उनको आती है. तो हमारा एम है कि बच्चों को ABCD तो आएगी, लेकिन जब वो बच्चे यहाँ से किसी बड़े स्कूल में जाएंगे या लाइफ में जाएंगे तो
तो लोग बोलेंगे कि इनको क्या ऐसा सिखाया है कि उनको इमोशन समझना आता है, उनसे उनके टैंट्रम्स भी रिड्यूस होते हैं, माँ बाप को भी समझ में आता है मैं फील क्या कर रहा हूँ, तभी तो कोई मुझे संभाल पाएगा। वैल्यूज़ जब होते हैं काइंडनेस के, गिविंग के, हम्बल के, तो बच्चे ग्राउंडेड रहते हैं जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाए। और जब लाइफ स्किल्स आती है ना, तो कोविड आए, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे डर नहीं लगता फेस करने से। तो हम उनको लाइफ रेडी कर रहे हैं, हम उनको बिग स्कूल रेडी नहीं कर रहे हैं। बिग स्कूल में तो वो चल ही जाएंगे। You're making a conscious school. इट इज़ अ कॉन्शियस। Conscious school. What is the difference between a conscious school and a preschool? हमारे स्कूल में बच्चों से बात करने का एक तरीका है। आप मेरे किसी भी टीचर को, मुझे, मेरे किसी भी केयर गिवर को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते, नो आप रो नहीं सकते, रोना बंद करो, ये सब नहीं बोलेंगे। वी रिस्पेक्ट चिल्ड्रन एज एन एडल्ट, वी ट्रीट चिल्ड्रन एज द मोस्ट ब्यूटिफुल गेस्ट। अगर मेरे घर में नरेंद्र मोदी जी आ जाए, जो उनका ट्रीटमेंट है वो मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट होगा। और हमारी 12 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू है कि हम अपने बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट जैसे ट्रीट। दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ, मेरे बच्चे एक तरफ, उनकी केयर करना एक तरफ। और जैसे हम उनके सामने अपना बिहेवियर मॉडल करेंगे, काइंडनेस, हम्बलनेस, थैंक यू, टीचर्स आपस में बात करेंगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग विद कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। मैं बोलूँगी नो ये मत करो, तो बच्चा भी बोलेगा नो ये नहीं करना। अगर मैं बोलूँगी आप रनिंग नहीं, भागी भागी नहीं, चल के दिखाओ, तो बच्चा कैसे बोलेगा, चल के दिखाओ। वो टोन में, वो तरीके में ही फ़र्क है। This school is from like, what is the starting age to get into the school? So we start from 12 months, which is something called a parent toddler program, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं. We have some time with the parents and small batch 8 to 9 parents and I take that thing. उसमें ना हम पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स टाइम स्पेंड कर सकते हैं 1.5 घंटा, जहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, जहाँ पे हम पेरेंट्स को बताते हैं, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज से एक्सपोज करते हैं. सो लॉजिकल एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव, लाइफ स्किल्स, राइम्स. फिर बच्चे, पेरेंट्स समझ पाते हैं उनके बच्चों को क्या अच्छा लगता है, फिर घर जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. और उनको ये भी समझ में आता है कि मुझे इतने सारे टॉयज़ नहीं चाहिए, मैं ये करके भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ. बच्चों के इंटरेस्ट समझ में आते हैं, हम उनको बुक रीड कराते हैं, बिकॉज वी एट क्यूरियस गिगलर्स फील रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स. जिसको बुक रीड करना आता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो लाइफ में कभी भी चेंज होकर अडाप्ट कर सकता है. हम बुक रीडिंग सिखाते हैं, राइम सिखाते हैं, हम पेरेंट्स को पेरेंटिंग एजुकेशन भी देते हैं, लास्ट का एक पार्ट. सो व्हाट हैपेंस इट इज़ अ होलसम थिंग. सो पेरेंट्स आर गेटिंग रेडी फॉर द बिगर वर्ल्ड. तो हमको दिखाते हैं कि ये तरीका है एंड ये चीज़ों से आपके बच्चे सीख सकते हैं. देन दे गो इन टू बिगर क्लास. बिगर क्लास मतलब 18 months से स्टार्ट. 18 months में दे गो टू toddler class, then they go to pre-nursery after 1 year, and then they go to nursery, and after that they go to bigger school. So when they are there with us from 18 months, तो साइंटिफिकली मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है कि लोग बोलते हैं 2 साल का बच्चा डाल दिया, 3 साल का बच्चा डाल दिया. द फैमिलीज कम एंड फाइट कि भैया नहीं, आपको ये नहीं पता बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने अडेप्टेबल होते हैं. बच्चे का ब्रेन 0 to 1 years में 50% डेवलप हो जाता है, और 1 to 5 years में 90% डेवलप हो जाता है. 90% ऑफ द एडल्ट ब्रेन. इसका क्या मतलब है, हमारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन कनेक्शंस बन रहे हैं एवरी सिंगल डे एक बच्चे के. तो आपकी एज अ पेरेंट एक लिमिटेशन है कि आप उनको क्या क्या दिखाओगे. वो तो एक स्पॉन्ज की तरह है ना, आप 100 चीज़ दिखाओगे 100 ले लेंगे. आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे फ्लैश कार्ड्स दिखाते रहो, कंट्री के नाम बताते, क्योंकि उनको एक्सपोज किया गया ना. आप भी करके देखो, सब बच्चे जीनियस है. हमको वो जीनियस निकालना है ना, कैसे करेंगे. हम उनको हंस खेल के खिला के ही कर सकते हैं. तो बच्चे जितने छोटे में स्टार्ट करते हैं ना, उतना अब्जॉर्ब करते हैं. 5 साल तक लाइक आई सेड उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, उनके रिएक्शंस बन जाते हैं. अगर वो इस माहौल में रहे 18 महीने से 5 साल तक, जहाँ पे उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे दे कैन टेक एवरीथिंग, वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस, एकेडमिक्स, कैन यू थिंक ऑफ देयर ग्रोथ. 2 साल का बच्चा ऑलरेडी अपने 50% ब्रेन से इतने ब्रेन पे आ जाता है, उसकी अडेप्टेबिलिटी और कम हो जाती है. 3 साल के बच्चे का ब्रेन इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको सिखाना और मुश्किल हो जाता है. सो द फास्टर यू स्टार्ट टिल 5 years इज़ द अर्ली डेवलपमेंट एज, जब आपके बच्चे का ब्रेन, आइडेंटिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी वैल्यू सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो. सो वी कैन से दैट एक छोटा बच्चा एक एम्प्टी कैसेट की तरह होता है. आप जो रिकॉर्डिंग में डालोगे वो वैसे ही वो रिकॉर्ड हो जाएगा. एकदम अच्छे से बोला आप, एकदम. लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि हमको स्कूल को प्रेशर जैसे नहीं लेना. हम तो प्रेशर दे ही नहीं रहे. हम तो हंसते खेलते उनको वो चीज़ें सिखा रहे हैं. जैसे आपने बोला जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं, तो हम वो वैल्यूज सिखा रहे हैं ना जो इंडियन वैल्यूज भूल चुके हैं. हम तो कल्चरल चीज़ें सिखा रहे हैं. वी ऑलवेज आर स्टिकिंग आवर ग्राउंड टू इंडियन कल्चर.
हम वेस्टर्नाइज भी नहीं हुए हैं, हम उनको हर त्यौहार के बारे में, हर धर्म के बारे में सिखाते हैं, तो वो भूले नहीं कि वो आए किस जगह से है, वो अपने रूट्स नहीं भूले, और जिनको अपने रूट्स पता होते हैं ना, वही पेड़ टिका रहता है. Absolutely. What is that one biggest challenge you faced starting Curious Giggler? फर्स्ट वॉज माई कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. मेरे को पता था जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो क्लैरिटी थी, जो मैं करना चाहती हूँ वो क्लैरिटी थी, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस थिंग टू द पेरेंट्स वॉज द बिगेस्ट चैलेंज. कि कोई समझेगा जो मैं करना चाह रही हूँ, बट मेरा विजन और पर्पस क्लियर था कि मुझे बच्चों, तो मैं पेरेंटिंग कराती थी ना पहले. पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में, एडल्ट्स का कंफर्ट जोन चेंज करना मुश्किल है, उनको सब कुछ हार्ड वर्क लगता है. तो मेरा काम तो था बच्चों को ही अच्छा करना पेरेंट्स के थ्रू. देन आई थॉट कि क्यों नहीं क्यूरियस गिगलर्स खोलते हैं और सीधा बच्चों के साथ काम करते हैं. पर मुझे बस यही लगता था कि ये सिलीगुड़ी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये जगह ऐसी चीज़ें मानेगी कि नहीं, क्योंकि हम बहुत एकेडमिकली ड्रिवन है. यहाँ पे बहुत कॉन्वेंट स्कूल्स हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है ब्ला ब्ला कॉन्वेंट स्कूल में मेरा बच्चा हो पाएगा कि नहीं. हो पाएगा ना, वो तो उनसे बहुत आगे चला गया. अब तो भूल ही गए कि एकेडमिक्स तो उसको आ ही रहा है, पर उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है जो दूसरों को नहीं आता. तो हमको ये नोशन हटाना था कि एकेडमिक्स भी होते हैं. तो आई थिंक नाउ इट इज़ एक्सेप्टिंग इट वेल, एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट से कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. देयर इज माइल्स एंड माइल्स टू गो, बट आई एम स्टिल हैप्पी दैट जो मैंने सोचा था वो पर्पस के रास्ते पे मैं अभी चल पा रही हूँ. मैं डिविएट नहीं हुई कि किसी के कहने से कि स्कूल में एडमिशन होगा कि नहीं स्कूल में. अभी तक टचवुड आई एम जस्ट स्टिल होल्डिंग माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग ऑन द ग्राउंड दैट आई वॉन्टेड टू. Fantastic, fantastic. Is there anything you've learned from those little gigglers at your Curious Giggler? Every day I learn something. I think nobody else teaches you the way children teach you. But one of the most beautiful things I learned from them is being in the present. हम सब लोग ना इस ओवर थिंकिंग, ओवर वर्कड दुनिया में ना जीना भूल गए. बच्चों से ना हमें जीना आता है, हंसना आता है. उस मोमेंट पे अभी चोट लगी, अभी भी खड़े हुए, अभी हंस दिए. अभी किससे लड़ाई हुई, अभी माफ़ किया, अभी खेलने लग गए. ये चीज़ें ना बच्चे ही कर सकते हैं. हम लोग Innocence. इतना इनोसेंस और वो प्रेजेंट में रहना जहाँ फ्यूचर भाग नहीं रहा है. ये सारी स्पिरिचुअलिटी का तो मेन एम ही प्रेजेंट में रहना है ना. तो बच्चों से ज़्यादा स्पिरिचुअल कौन होगा? सही बात बिल्कुल. इसीलिए उनमें भगवान होता है. Right. That is why they say, right? या दैट्स ट्रू. वो स्पिरिचुअली उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई होती है ना कि आप उनको 2 मिनट में वो पिछली बात भूल जाते हैं. वो ग्रीवेंसेस लेके ही नहीं आते, वो कोई टेंशन लेके ही नहीं आते. वो अभी में जी रहे होते हैं और इतने खुश होते हैं. उनको खुशी देने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, स्माइल करते रहते हैं. और हमको खुशी देने के लिए हमें कितना कुछ चाहिए. सो व्हेन आई सी देम नो, आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ दिस इज इट, दिस इज लाइफ. आगे पीछे भूल जाओ. प्रॉब्लम क्या है कि हम पास्ट को सच मान के चलते हैं और फ्यूचर की तरफ डरते रहते हैं. जबकि पास्ट तो चला गया, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता. अभी हम जी रहे हैं और फ्यूचर हम बिल्ड कर सकते हैं. तो बच्चे वही सिखाते हैं. Beautiful. And do you see any changes in parents when you started Curious Giggler and now when is it running? How do you see that difference in parents' attitude? बहुत ज़्यादा. I am blessed that all those parents take feedback. All those parents एक्चुअली ना, थोड़ा सा एक सीक्रेट बताऊँ, हम पेरेंट्स ही वो लेते हैं जो बिलीव कर पाते हैं. नहीं तो अगर वो पेरेंट्स लूँगी जो बिलीव नहीं कर पाते ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक स्ट्रगल रहेगा. सो एट टाइम्स वी चूज द पेरेंट्स हु बिलीव इन अस एंड द सिस्टम, एंड देन वी कैन ग्रो टुगेदर. हमारे स्कूल की एक सबसे बड़ी वैल्यू है दैट पार्टनर्स आर पेरेंट्स टू ग्रो, लाइक पेरेंट्स आर पार्टनर्स टू ग्रोथ. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मेरे पास तो बच्चा 2.5 घंटे, उसके बाद वो पेरेंट्स ने अगर नहीं अपने बच्चे को उसी वैल्यू सिस्टम से पढ़ाया तो मैं कितना ग्रो कर लूँगी. तो पेरेंट्स के बार बार सेशंस होते हैं, पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम हर महीने रिव्यू करते हैं. एंड touched by God's grace, each and every parent has always listened to us and implemented and executed what we have told them, and they've seen great results. And that is the most beautiful part, that Curious Gigglers na sirf bachcho ke liye nahi hai, it's a whole family system Family growing. system, right? I have seen few of the grandparent session also that you're imbibing that grandparents day हो गया या फिर और भी seasonal या फिर festival. बहुत अच्छा लगता है देखने में. सब फेस्टिवल्स बनाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं. तो एक बार एक फादर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि पता है मेरे पापा ना मेरे स्कूल के एक भी फंक्शन में नहीं आए, और देखो इसका नाम लेते ही आ गए. इतना ब्यूटीफुल होता है ग्रैंड पेरेंटिंग. एंड ही हैड टीयर्स सेइंग दैट मेरे पापा मेरे लिए कभी नहीं आए, देखो आगे. एंड वो मोमेंट ना मेरे से, मतलब उन्हीं मोमेंट्स के लिए शायद आई लिव. Uniting everyone. It's like a family thing. For me,
When a child grows, a family grows, and when a family grows, a nation grows. Right, true. And where do you see CG in next 5 years? So my vision is that CG kind of curriculum should be implemented every school in India. We have a vision कि हमारा curriculum हम जहाँ जहाँ implement करा पाए करा दें. वो विजन बहुत फार फेच्ड है. आई डोंट नो 5 years, 10 years, 20 years मेरे रहने से, मेरे जाने के बाद कब. लेकिन अगर वो सोच रखी है, शायद करना ज़रूर है कि हर एक जगह उन बच्चों को वो फ्रीडम मिले ग्रो करने की, जहाँ पे कोई रेस नहीं हो, जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं हो, जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं हो कि उनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनको स्कूल में कहाँ कोई रेस नहीं लगी हो, जहाँ बच्चों को अपने आप से, अपने जीनियस से वर्क करने का काम मिले. हर बच्चा अलग है ना. मैं फिश को बोलूँ क्लाइंब करो और बर्ड को बोलूँ स्विम करो, नहीं हो सकता ना. तो बर्ड को फ्लाई करने देते और फिश को स्विम ही करने देते हैं. बस वैसे मेंटालिटी के साथ ना हर जगह अगर इंडिया में ये स्ट्रक्चर चला जाए, सो थिंक ऑफ इट विल बी सो ब्यूटिफुल. पूरा दिस होल एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज. वी कांट वर्क. मैंने जो पढ़ा था वही मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वही हिस्ट्री. मतलब बहुत अजीब सी बात है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो गया पर पुराना टैक्सेशन पढ़ रहे हैं. क्यों? हमें टैक्स खुद ही भरना आ गया फिर भी हम सीए बन रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द वर्ल्ड एंड इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है ना. आज आप एनिमल रेस्क्यूअर भी बन सकते हो, आज आप एक ऑथर भी बन सकते हो, आज आप एक स्ट्रीट डांसर बनना चाहो तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो. आजकल वर्ल्ड हैज़ नो लिमिट्स, फिर भी हम बच्चों को वही 4 बॉक्स में क्यों डाल रहे हैं? सही है. वन टिप फॉर अपकमिंग पेरेंट्स, जो आपको थोड़ा, अगर उनको प्रिपेयर करना चाहते हो कि अपकमिंग पेरेंट्स, तो आप क्या बोलना चाहते हो अपकमिंग पेरेंट्स को? अपने बच्चे से कनेक्शन बना के रखो. चाहे आप बच्चे को 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, 30 मिनट दो, पर रोज़ दो. और उस टाइम पे आप और आपका बच्चा और दुनिया में कुछ नहीं. आप प्रेजेंट मोमेंट पे, अपने फ़ोन के बिना, अपनी टेंशन के बिना. अगर आपने ये अचीव कर लिया, आपको कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू सो मच दिव्या फॉर सच अमेजिंग थॉट्स. मतलब इट्स इंडीड, इतना नहीं पता था. आई एम नॉट अ पेरेंट एंड आई एम श्योर आफ्टर टुडे लिसनिंग टू यू, आई गेस मोस्ट ऑफ हुआ वुड बी पेरेंट्स या हु आर प्लानिंग चाइल्ड, आई गेस उन लोग को बहुत एक वास्ट नॉलेज मिला है. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट. Thank you so much for having coming. me. Thank you. And that's a wrap for today. A very big thanks to Divya who has shared such amazing parenting hacks. और हमें ये बताने के लिए मारना is not always discipline. So guys, it's time for me to bid goodbye. Till then, stay curious, stay innocent, and the tales may end, but the talk still goes on.